Good afternoon, everyone. Today is indeed a very special day. All of you know we are here for a celebration, and the celebration is for our association with HDFC Bank Parivartan CSR initiative. We have with us Abhijit Kahalekar, and we have also with us the winners of Parivartan CSR grant. So I welcome Abhijit as well as the startups who are lucky to be selected. Not only they are getting selected, but they would be getting rewarded also today for the work they have carried out in the past. Very quickly I will narrate how it all started. During lockdown, we were in touch with HDFC Bank team for the startup related SmartUp initiative. We conducted a couple of webinars in association with them. Subsequently, we requested HDFC Bank that Magic would like to sign a MOU with them as an ecosystem partner, to which HDFC Bank agreed, and the journey in real sense started. While we were progressing on that path, we came across this particular wonderful initiative of HDFC Bank, and we applied for the Parivartan CSR grant. And I am delighted to inform you that amongst the very few incubators in the country, maybe 15 or 17, I don't know the exact number as of now, but they are 15. And Magic is one of them. So it's really a proud moment for all of us. And it's also an occasion for celebration. So I hand over this to Rohit, who actually processed all the applications and the overall selection process. So he will quickly guide and narrate how the process was executed, and then we will proceed with the actual check distribution ceremony. So over to Ravi. Great. So thank you, Ashish sir, to give us a great start. And yes, this is a result of the foundation that we had laid in the last 6 to 9 months or so. The journey since the time we got into the Parivartan phase, that was very interesting. And fortunately, this year the Parivartan goals are very closely aligned to the passions of many of our directors as well. So we are talking about environment, health and gender diversity. Now from all the startups that we have been working with so far, we had 11 startups who qualified in either of the 3 categories. So we worked very closely. It was like a war room activity, because till now, everything that happened in this journey has been with only 3 to 4 days of lead time. 3 दिन में 1 pager लाओ, 2 दिन में डेक डालो, तीसरे दिन हमको पिच करो. So it was a pretty dynamic activity, and the good thing is, because of the way in which all of our startups work with our mentors, they are almost ready always. So we don't have to like build things from scratch. It's all here. We just have to put it together and we are all set. So initially we had 11, then we shortlisted to 5, and of those 5, 3 got selected. They went through a very grueling pitching round with the jury, your HDFC Bank jury, and which helped us kind of gauge based on the need, the stage, how well provided they already are, what traction they need to gain. So if X goes in, how much Y can come out? Does somebody need more than someone else? So all these things they help evaluate, and that is how we figured out who should get what
and how the total fund can be allocated. Plus our startups have been very objective as well. They have given us a very clear-cut plan as to where the funds are going to be utilized and what outcome that utilization is going to achieve. This is not a mandatory requirement from HDFC Bank. As far as my information goes, probably hardly any incubator is doing this. But Ritesh sir, who leads our investment committee, he was very insistent right from the beginning that keeping aside what others do, we should have a very objective and clear approach, so that next time when we get into something like this or you work with some other investor, you always know that we need to have a good plan in place. So it is wonderful. You all know the excitement I had every time I spoke with you when we got the message कि अरे तो select हो गया. So with that I'll request Abhijit to say a few words on our engagement, how you felt, what your experience has been with Magic, and then we'll move on to the next point in the agenda. Okay. Abhijit is from HDFC Bank. myself Abhijit Kahekar, I'm from HDFC Bank. स्टार्टिंग में तो एक्चुअली आई डोंट नो कि मैजिक क्या है क्या नहीं, मुझे भी पता रहता, बट जब भी मेरा टीम सर से बात किया, रवि सर से बात किया, आशीष सर से बात की, दैट टाइम फिर हमें इतना प्राउड फील हुआ है सर कि सच में कि ये कंसेप्ट मुझे नहीं मालूम था, बट ये कंसेप्ट औरंगाबाद में लाया और ये लाके हमें क्या करना है इसका रियलाइजेशन हमको पता चला कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल विनर, इनका सिलेक्शन हुआ है उनका, और डेफिनेटली HDFC बैंक सबके साथ है, और जो भी बैंक के जो व्यूज़ है हम उसको हम कंप्लीट करेंगे. बस मैं कहूँगा. सो थैंक यू वेरी मच. Good afternoon, everyone. Ashish ji, Prasad ji, my colleagues, Abhijit from HDFC Bank, and Rohit, and everyone here. It is a proud moment. Ashish ji spoke about it. We are 1 in 15 in the country. Abhijit said we are new to the city. I would say we are new to the city. नहीं, हम मराठवाड़ा के लिए नए हैं. So people are getting to know us, and it is good through HDFC Bank. People can know us better. देखिए कॉन्सेप्ट ऐसा है, मैं हिंदी मराठी इंग्लिश मिक्स बात करता हूँ क्योंकि सब लोग यहाँ पर जो है नॉट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड मराठी. तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, आपके पास में अगर आइडिया है तो आप हमारे पास में आइए. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. और फिर आगे उसका क्या करना है वो हम लोग आपको बताएंगे. तो उसमें आपको कोई आता है, जैसे आज सुबह में सैटरडे को हम लोग एक मेंटरिंग क्लिनिक चलाते हैं एवरी सैटरडे. प्रसाद जी और मैंने आई थिंक 2018 से हम तीनों ने, आशीष जी, प्रसाद जी और मैंने 2018 से आई थिंक ये शुरू किया है. तो हम लोग कुछ नहीं, हम आके यहाँ बैठते थे नीचे CMI के हॉल में 10:30 बजे, और जिसको भी आइडिया लेकर आता था हम लोग सुनते थे. कोई हमसे डांट खा के जाता था, कोई समझ के जाता था, कोई बोलता था कि दूसरी बार आता था तो वो जो हमारे पहले कलीग थे हमारे महेश, उनको बोलते थे कि वो दोनों अगर होंगे तो हम नहीं आते. वो बहुत डांटते हैं और काम पे लगाते हैं. बट अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि आपके पास में अगर आइडिया है और आपको उसको नर्चर करके कंपनी के इसमें बनाना है, अगर उसकी कंपनी बनाना है तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है. विजय को हम लोग पहली बार आई थिंक ऑफलाइन मिल रहे हैं, अभी तक सारा ऑनलाइन ही मिल रहा है. और जब भी विजय बड़े पैशनेटली बोलता था मैंने ये किया वो किया, बट सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाले हम 2 ही लोग रहते थे. एंड जब देखिए आप, वी ऑलवेज से कि ये बिजनेस प्रपोजिशन, लाइक आई यूज द वर्ड, और योगेश अभी हमारे साथ में बैठता है तो सुनता है, धंधे की बात करें. बिकॉज अल्टीमेटली ये किस चीज़ के लिए हो रहा है, ये बिजनेस के लिए हो रहा है. अपन पैसा कमाना, और आपको पैसा कमाना नहीं है तो आशीष जी के पास में जाइए. ये ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मा उनके पास है.
So he can guide you in a better way कि आपको सिर्फ सेवा करनी है जन सेवा में, तो वो आशीष जी करेंगे. धंधे की बात करनी है तो फिर हमारी गालियाँ खानी पड़ेंगी. So because he is the one who can take you. जैसे आज भी एक दो डॉक्टर्स आए हुए थे, उनका प्रोजेक्ट जो है इट इज़ रिलेटेड टू जीरियाट्रिक क्या है. सो अभी उनको आशीष जी ने गाइड किया कि भाई कैसे करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ एसोसिएटेड विद सम ऑफ द फॉर्म. सो इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि यू आर हियर फॉर अ बिजनेस और यू आर हियर. तो अभी बहुत लोग आते हैं हमारे पास में कि हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, बट जब बिजनेस की बात आती है तो दे डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग प्रपोजल. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि आपके पास में अगर आइडिया है तो आप आइए. वी विल इंश्योर कि उसको कंपनी कैसे बने और उसमें से आप बिजनेस कैसा बना सकते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर 11 पैशनेट directors of Magic from varied fields. Rohit spoke about diversity. So you have Ashish ji, he has a background of marketing for so many years. Prasad ji, a background of manufacturing. मैं like I used to say, I am a farmer. मैं किसान आदमी हूँ. और बाकी लोग हमारे पास में there are different people from different industries. But our passion is only one. We want to create entrepreneurs from Marathwada and from anywhere in the country who is ready to work in the interest of India. So भी हम लोगों का, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम चौथा इस बार इनोवेशन चैलेंज रख रहे हैं. पिछले 4 साल से हमारे इनोवेशन चैलेंजेस होते हैं. पिछले साल आत्मनिर्भर भारत था, उसका थीम. इस बार इनोवेट फॉर इंडिया. तो इसके थ्रू बहुत से आइडियाज़ आते हैं और बहुत से लोगों को गाइडेंस भी मिलता है. तो अभी विजय भी पहले एक प्रोजेक्ट पे काम करते थे. उन्होंने इज़ अ वेरी, ही टेक्स प्राइड इन सेइंग कि सियाचिन में मैंने मेरा इंजन बिठाया है जो सब जीरो टेम्परेचर पे काम करता है. एंड वी ऑल्सो टेक प्राइड अबाउट दैट. एंड नाउ ही इज़ वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट. निखिल कहाँ है? निखिल इज़ वर्किंग on 2 different projects. I don't know whether he will permit us to talk about. He is working on a bike also, which is electric bike. So Nikhil Aurangabad ka hai. He is working. I think Srijan is not able to make it. Srijan is from Nagpur. He's from Nagpur, but studying He is in based out in Visakhapatnam, and he is working on a project. So I am happy to say that we have 3 winners today. Have been shortlisted in the HDFC Bank's Parivartan CSR grant or fund. But ऐसा देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, और वो योगेश कहाँ गया? योगेश गावंडे है क्या? सबसे ज़्यादा डांट मेरी वो खाता है. उसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्रांट फंड, ये मुफ्त का पैसा लेने की आदत मत डालो. वो आदत लग जाएगी तो इन्वेस्टर के पैसे पे फिर रिटर्न देना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो वो आदत में अगर वो मोड में आदमी चला गया, सो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. जैसे मैं और प्रसाद जी, वी लाइक टू कॉइन इट. मैं हमेशा इंजीनियरिंग कॉलेजेस के पास में जाता हूँ, सो आई कीप ऑन सेइंग, एक प्रोजेक्ट है तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज में, आप सब लोग इंजीनियर्स हैं, सबको प्रोजेक्ट करना पड़ता है. प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट अगर बनाना है तो उसमें की मेहनत और उसमें की जो जर्नी है वो इम्पोर्टेंट. एंड दैट ट्रांजिशन फेज इज वेरी इम्पोर्टेंट. So we are happy HDFC Bank is associated with us, and we are associated with HDFC Bank. Let us work together and have a good prospect for these people. आप इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको उनके बिजनेस की ज़रूरत पड़ेगी. और हम कैटलिस्ट का काम करेंगे. जितनी हमारे पास में बड़ी फाइल आएंगी हम आपके पास में भेजेंगे. नॉट ओनली ग्रांट, बट यू कैन स्टार्ट सपोर्टिंग देम इन डिफरेंट मीन्स ऑल्सो. बिकॉज सी अल्टीमेटली आपका भी ऑब्जेक्टिव है, हमारा भी ऑब्जेक्टिव है, और उनका भी ऑब्जेक्टिव है. सो ऑल टुगेदर लेट अस चेंज लाइफ्स ऑफ ऑल आवर पीपल. लेट अस बी मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, एंड ड्रीम फॉर इंडिया. So I am happy to announce. Rohit, can I officially announce? Yes. Okay. So we have 3 winners based on the grant which we had received, and so we have. I am happy to say Vijay Mamtani and his Moise and Vijay together. Then we have Nikhil. Abhijit, please. First we will
we'll hand over the check to Vijay. It is a 10 lakh. It is a 10 lakh rupees check. And so beauty for Magic is this is the first grant even Magic is handing over. So Vijay, you are the pride recipient of the first ever. So congratulations, and I see a lot of dreams in the eyes of the aspirant also. 100%. Thank you so much, sir. Thank you so much. ये विजय जो है ये आके फिर भाग गया इसके घर वापसी कराना पड़ेगा। आज सवेरे हमारा 30 मिनट डिस्कशन हुआ है। What he needs to work in a particular town is known. We will make it happen here. Done, sir. Thank you. Okay. तब तक साइन करेंगे चेक को। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. We'll keep on monitoring it on a regular basis. There is no free lunch. The journey has started. Next I invite Nikhil Dev. Nikhil. Thank you, sir. Yes. So you can see the amount is different. It is based on the requirement, based on the thoughts put together, and based on the ideas कि किसके लिए कितना खर्चा लगेगा और प्रोडक्ट क्या है ultimately. So Nikhil, congratulations. Nikhil has been associated with almost 4 years now. 4 years. Yeah. And this is his, I think, second product. Right. Yeah. Well, congratulations. Thank you. Thank you, sir. Third, we had, like I said, आप है। Srijan side है, सबसे बड़ा check है amount, but Srijan is not here. Prasad ji is Srijan's mentor. So Prasad ji, we hand over to you. Prasad ji is Srijan's mentor. Prasad ji, same conditions apply to you. We'll keep reviewing. There is no free lunch. आज भी मिला नहीं है। एक ग्रुप फोटो हो जाए। सीजन का बरं जर रात्री रात्री 9:30 ला पण करा. तीनों केक बैठने चाहिए। वो तो नहीं ना आजा रोहित ये कॉर्नर इधर दृष्टि पूरा ध्यान आप पे जाएगा। Yeah, move this side, please. Like if you can shift थोड़ा एक towards left, please. We will have to Towards adjust. left. Thank you. Great, 3 cheers for Magic and all the incubators. Nikhil and we have only 2 of them, so I would ask both of them to share their views very briefly. पूरा प्रोजेक्ट मत करो। नहीं, यहाँ पे खाली फीलिंग बोलना है। Talk about your project, talk about your experience and your feeling, and what is I would say what is the way forward. Sure. So thank you so much for this opportunity and to HDFC Bank and मैं बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन की आदत हो जाती है हम लोग को बोल के। So जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था औरंगाबाद और मेरी शादी हुई और जब हम लोग का एक डिस्कशन हुआ तो महेश सर थे जो स्टार्टिंग में थे यहाँ पे। So मैं बड़ा क्यूरियस रहता हूँ कि एज अ स्टार्टअप तो मुझे मौका मिला, मैं NIT भोपाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लिया था, 2015 पास आउट हो गए थे। सो उसके बाद भी कुछ एक क्लिक नहीं मिल रहा था कि ठीक है यही हो गया, ये देख ली इंजीनियरिंग देख ली, NIT देख लिया,
मैं यंगेस्ट हूँ घर में, सो बड़े भाई सिस्टर्स को भी देख लिया, अच्छा जॉब ये होता है 9 to 5, सो वो सारे पर्सपेक्टिव्स में फिर भी मुझे कुछ वो किक नहीं मिल रही थी उस चीज़ को लेके। तो 2016 में जब अनाउंस हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने जब अनाउंस किया स्टार्टअप इंडिया और आपके पास कुछ आइडिया है तो आप वो लेके आइए, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और डेफिनेटली मैं IIT भोपाल से था, तो सबसे पहला मेरा मोड वहीं पे ही था। वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होते होते तो मैं एकदम जंप करूँगा औरंगाबाद के जोन में कि मैं कभी नहीं सोचा था। औरंगाबाद में हमारे वेंडर ज़रूर होते थे, MIDC से बहुत सारी चीज़ें होती थी जो हम लोग डिज़ाइन करते थे, और बहुत ही क्लीनेस्ट वेंडर्स होते थे जिसके थ्रू हम लोग अप डाउन ज़रा लगा रहता था हमारा। बट कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि सिटी में मैं रह के एक इंक्यूबेशन के थ्रू इतने ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो एक मैंने गूगल किया, जो मैं हमेशा होमवर्क करता ही हूँ, हर सिटी में जाता हूँ तो एक मेरा सेल्फ होमवर्क रहता है जो मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मेरे खुद ही अंदर से आता है, कुछ एनर्जी क्रिएट करके किसी लोगों से मिल के कुछ नया बनाने की, वो कुछ अलग ही एक एनर्जी है जो आती है। सो मैंने जस्ट एक गूगल किया, वहाँ से कॉल लगाया, मैंने महेश सर मिले और मैंने बोला सर मैं औरंगाबाद शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं भोपाल से हूँ और ऐसा ऐसा मेरे पास एक आइडिया है। और शायद एक वेबसाइट थी मैजिक की उस समय, बहुत अभी काफ़ी अलग है, अभी उस समय बहुत था, तो वो कांटेक्ट करके मैं फटाफट कांटेक्ट करके मैं यहाँ आ गया। सो उस समय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में थी, बहुत ज़्यादा इनिशिएशन लेवल पे थे, बट सेम एनर्जी महेश सर ने भी मुझे पोर्ट्रे करी, वो सिनर्जी हुई और वहाँ से फिर चीज़ें उन्होंने बताया कि यार हम लोग बड़े विजन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो था शायद 2019-20 की स्टार्टिंग थी और फिर ये पैंडेमिक का जोन आया। सो मैं औरंगाबाद शिफ्ट हुआ, 2-2.5 साल मैं यहाँ पे रहा, मिल कॉर्नर पे खड़केश्वर, काफ़ी ज़्यादा अप डाउन्स हुए। उस दौरान मुझे महेश सर ने काफ़ी गाइडेंस देते हुए ये सारी चीज़ें, फिर रोहित सर से इंट्रोडक्शन हुआ, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था कि अच्छा इंक्यूबेशन इकोसिस्टम, फिर वो स्टार्टअप का कैसे प्रोजेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें होते होते आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे एक अवार्ड मिल रहा है। सो मुझे बड़ा कनेक्टिंग लगता है कि अरे वाह, मुझे ये किसी ने सिखाया नहीं, मुझे किसी बुक में नहीं मिला कि आपको इफ़ यू आर शिफ्टिंग और इफ़ यू हैव एनी आइडिया तो आप उसको ग्रूम करते जाइए। ये इंटरनल आता है, ये एक इंटरनल एनर्जी आती है जो आपको अचीव करने के लिए पीछे भगाती है। किसी टाइमलाइन को अचीव करते हैं, हमारे दिमाग में हमेशा एक क्लॉक होता है, वो सारे एंटरप्रेन्योर्स में एक क्लॉक होता है, वो हमको भी नहीं पता कि कहाँ से आता है, जो स्लीपलेस नाइट्स की तरफ ले जाता है हमको कि 24 घंटे काम करने की एनर्जी आ जाती है। तो वो सारी एनर्जी मुझे दिखी और मैंने जैसे जैसे लोगों को बोला जाता है कि आप जो चीज़ चाहते हैं और उसी तरीके के आपके सर्कल्स क्रिएट होने लगते हैं, तो मुझे वही सर्कल्स यहाँ पे क्रिएट हुए और वही सेम एनर्जी मेरे पास आई, तो वहाँ से फिर चीज़ें स्टार्ट हो गए, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दी ग्रैंड। तो यही है, इसी तरीके से मैं आगे बढ़ना भी चाहूँगा और मेरे जितने भी नियर बाय कलीग्स हैं मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मेरे जूनियर्स हैं जो आते हैं, जो मुझे थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों में आइडल बना चुके हैं कि नहीं सर आप ऐसे करते हैं आप वैसे करते हैं, तो डेफिनेटली मैं भी उनको यही पुश करता हूँ कि यार बस काम करो, 24/7 काम करो, फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो थैंक यू मैजिक, थैंक यू, इट्स अ मैजिक, थैंक यू। निखिल, मला नाही सर, ते योगेश डिपार्टमेंट तिकडे आहे. धन्यवाद सगळ्यांना. HDFC आणि मॅजिक 2017ला जेव्हा मॅजिक चालू व्हायचा प्रयत्न चालू होता, मी आणि योगेश पहिल्यांदा सरांना भेटलो होतो, तेव्हापासून मॅजिकसोबत आम्ही दोघं बिझनेस घेऊन ग्रो होतो आणि मॅजिकने हेल्प केलं आहे पहिल्या फर्मला पुढे यायला. आता लवकरच दुसरी फर्म पण एस्टॅब्लिश करून चालू करतो आहे, त्यामुळे होपिंग फॉर द सेम फ्रॉम युअर साईड. थँक्यू. anyone wants to share? वेदांत नवीन युनिव्हर्सिटीपैकी काय वाटते सर्व हे बघितल्यानंतर योगेशला सांगा, योगेशला. नाही विनर नाही, तुझा एक्सपिरियन्स. योगेश आणि वेदांत बोलू शकतात. हॅलो एव्हरीवन, माझं नाव वेदांत पैठणे आहे. सध्या माझी DD पॉलिप्लेक्स नावाची फर्म आहे जी प्लास्टिक रिसायकल करते औरंगाबादमध्येच. तर मी ती फर्म चालू केल्यानंतर मॅजिकशी असोसिएट झालेलो आहे, त्याच्यामुळे माझ्या भरपूर चुका, भरपूर काय काय झालेलं आहे ते मी रेक्टिफाय करतो आहे आणि मॅजिक मला हेल्प पण करतं त्यासाठी.
आणि हे सगळं बघितल्यानंतर मला अजून पण असं एक अजून आतून कॉन्फिडन्स आला की नाही, आपण यांच्याशी असोसिएट झाल्याबरोबर अजून पुढे आपण बरंच काही करू शकतो. हे एक चांगलं वाटतं. बस एवढं मी आता हे करू शकतो. योगेश, तुझे इनपुट्स नवीन लोकांसाठी महत्त्वाचे आहे. हा वेटरन मोस्ट सिनियर पर्सन आहे. प्रामाणिक इनपुट सर, ते व्हेंचर कॅपिटलिस्टला देतो कधी योगेशकडे खूप आहेत सर. माझं इंट्रोडक्शन करून द्यायची गरज नाही. सरांनी जसं सांगितलं ते सगळ्यात जास्त शिवाय खाणारा मी. त्याचं कारणही कसं होतं की इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर मी इथं आलो आणि पहिल्यापासून काहीच कळत नव्हतं. म्हणजे मला जे वाटतं मी तेच करणार अशातला मी होतो. पण ते सगळं बदलवणारे फक्त म्हणजे प्रसाद सर आणि रितेश सर, ते जसं जसं सांगत गेले तसं तशा गोष्टी करत गेलो. बिझनेसचा बी पण माहीत नव्हता, एंटरप्रेनरशिपचा ई पण माहीत नव्हता. इंजिनिअरिंग करत होतो पण इंजिनिअरिंग पण कळत नव्हती. ती इंजिनिअरिंग मला रायकाटा सरांनी शिकवली. बिझनेस कसा करायचा, कुठं काय आणलं, काय सोल्युशन काढायचं, ते मला प्रसाद सरांनी शिकवलं. तर म्हणजे मी आज जो काही करतोय, जे काही बिझनेस केला, जे काही असेल, किंवा ह्या बिझनेसपेक्षाही म्हणजे माझी जी पर्सनॅलिटी डेव्हलप झाली ती सगळ्यात माझ्यासाठी महत्त्वाची होती. पैसा आज नाही, उद्या, परवा किंवा पुढच्या वर्षी कधी ना कधी तरी येईल, पण ती एक पर्सनॅलिटी आणि माइंडसेट डेव्हलप करणं खूप गरजेचं होतं. मला रितेश सरांनी आणि बाकी सगळ्यांनी ती गोष्ट शिकवली. आणि जसं महेश सर होत्या, तर त्यांनी जी थॉट प्रोसेस शिकवली की डील कसं करायचं, प्रत्येकाशी बोलायचं कसं, तर ह्या सगळ्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट होत्या. म्हणजे एका स्टार्टअपला फक्त पैसाच पाहिजे असं नसतं, त्याला त्या म्हणजे माइंडसेटमधून किंवा त्या थॉट प्रोसेसमधून जाणं खूप जास्त गरजेचं असतं. काय करायचं आहे आणि काय नाही केलं पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी खरंच खूप इम्पॉर्टंट असतात. पैसा हा त्याच्यानंतरची म्हणजे सेकंडरी गोष्ट आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी मी शिकलो. आणि नवीन येणाऱ्यांसाठी तेच की सर शिवाय देतात पण ते आपल्या कामाचे असतात, ते ऐकलं पाहिजे आणि त्यातून शिकायचं आणि पुढं जायचं, एवढंच मी सांगेन. Thank you friends, first HDFC for making this happen. आम्ही तुमच्यामुळे या सगळ्यांना मदत करू शकलो. सो फर्स्ट थँक्स टू HDFC. तुम्ही रिप्रेझेंटेटिव्ह आहात म्हणून आमचं हे म्हणणं तुम्ही सगळ्यांना. दुसरं, ज्यांच्यासाठी आम्ही एक्झिस्ट करतो, वाय वी एक्झिस्ट, ऑल दीज यंग माइंड्स हु आर ॲस्पिरेशन टू ग्रो एंड ग्रो. वो एक पिक्चर में एंटरटेनमेंट था, लेकिन ये मैजिक में सिर्फ ग्रो एंड ग्रो. क्या ग्रो होगा? वी नेवर टीच, लाइक मी एंड रितेश नॉर्मली सिट्स इन अ चेयर, हॉट चेयर जो होता है. बहुत बुरा लगता है किसी के आइडिया को ठोकर मारने में, किसी के आइडिया के चिंदड़े उड़ाने में, लेकिन वो ज़रूरी होता है एज ए प्रोसेस. सो मेनी टाइम्स एंटरप्रेन्योर डजंट अंडरस्टैंड कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है. और जो वीक माइंड के होते हैं वो, जैसे रितेश ने, वो दोनों नहीं है ना, फिर हम आएंगे. वो दोनों है तो फिर वो गाली खानी पड़ेगी, वो बोलेंगे तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, और करना पड़ेगा, इतने से क्या होगा, ये सैंपल साइज बिल्कुल ही निग्लिजिबल है. ये सब क्यों बोलते हैं हम लोग बैठ के? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिटिसाइजिंग योर आइडिया और मेकिंग anything negative impact on your business idea. We want that to crystallize. We want that idea to get validated. We want that idea to grow to a certain level where we see the growth of an entrepreneur. तो ये सब होता है. और जैसे योगेश ने बताया कि we never teach कि money. सब लोग बोलते हैं कि money is a input and also they have aspiration कि money is a output. और हम लोग सिखाते कि मनी इज नाइदर अ इनपुट नॉर अ आउटपुट. आइडियाज़ होने चाहिए और उसको प्रोसेस में बांध के आगे चलना चाहिए. मनी बिकम्स इनपुट. लाइक आप लोगों को तो पता नहीं था 10 लाख 20 लाख 12 लाख क्या मिलने वाले हैं. सो दीज आर द इनपुट्स. बट इफ़ यू डोंट परस्यू योर आइडिया, इफ़ यू डोंट वर्क ऑन दोज आइडियाज़ एज अ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि उस पर सोचो, पैसा भी सब बाद में होगा. वो जैसे जैसे सोचते जाएंगे मनी विल बिकम आइडियली योर इनपुट. और जैसे जैसे ग्रोथ में आएंगे
एंटरप्रेन्योर ऑलवेज सेकंड फेज में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, पैसे में भी और टाइम में भी। लेकिन फर्स्ट हाफ जो उसका रहता है वो हार्डशिप रहता है, और वो जो हार्डशिप करता है उसी को वो आगे का प्लेजर मिळता है। सोनं कसं तावून सुलाखून निघतं, गरम केल्याशिवाय त्याच्यात झळाळी येत नाही। सो वो जो एक हॉट सेक्शन होता है वो यहाँ से शुरुआत हम करें कि दिस कैन बी यूर हॉट जोन, और ये हॉट जोन से जब पास होंगे आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस में भी अलग अलग हॉट जोन्स होंगे, अलग अलग टेम्परेचर्स के होंगे, बट आफ्टर दैट हॉट जोन्स देयर इज अ इनफाइनाइट पैराडाइज इन फ्रंट ऑफ यू एज ए एंटरप्रेन्योर। आप जो चाहे कर सकते हो, जिस बिजनेस में जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन एक हॉट जोन वाला जो पैसेज है वो पास कराना हमारा सबका एक मकसद है। दैट्स वाई दिस मैजिक इज फॉर। इसका पर्पस ये है कि हम लिस्ट लिखते हैं ये सारे, दीज आर ऑल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, बट जो एक्चुअल जर्नी होता है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, और वो हम लोग जो मेंटर हम कहते हैं 500 years plus experience of the mentor, and I think 1000 crore plus is the turnover experience of our mentors। तो ये सब जब देखते हैं तो ये बहुत सारा आप लोगों को मिल रहा है, ट्राई टू टेक इट। और ये अभी नाइस ऑफिस उद्घाटन की प्रतीक्षा में है, इसका जैसे उद्घाटन हो जाता है वी विल प्रोवाइड co-working space, वी विल प्रोवाइड यू द एड्रेस फॉर योर बिजनेस यूनिट हियर, और जिसको वर्कशॉप स्पेस चाहिए उसको मराठवाड़ा ऑटो क्लस्टर या कहीं भी MIDC वालूज में वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू, सपोर्ट यू, बट वी वांट अ सक्सेस ऑफ आवर इंक्यूबेटिव ओनली व्हेन ही पेज इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट। We all are there to create wealth for the nation. If that objective is not going to satisfy, our mission is incomplete. So we all shall try religiously that our wealth is created in such a manner that we will be able to deposit some tax to government and create wealth for the nation. So all the best, congratulations to winners, and all the best to aspirants who will be really witnessing to see such hot zones, and I am sure Vedanta is facing that hot zone right now। योगेश थोड़े से लो टेम्परेचर में आगे गया होगा, बट स्टिल इन हॉट जोन। निखिल भी वही है, सो एवरीवन इज इन हॉट जोन। सो समर भी आ रहा है, आई थिंक लेट अस प्रे कि इसमें से भी हम जाएंगे, लेकिन ऐसे जाएंगे कि बाद में फिर हमें पैराडाइज दिखेगा पूरा रियल। थैंक यू वेरी मच। With this, we'll formally conclude this today's short and sweet session, and we'll have a group photo as Yogesh is mentioning, maybe नीचे भी बाहर भी हो सकता है, सब लोग यहाँ पे accommodate होंगे ऐसा नहीं है। But this is a good start, and we look forward to working with HDFC year after year. Maybe इस साल we have distributed, yes, I was coming to that, इस साल हमने 50 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट है, नेक्स्ट ईयर इससे भी ज़्यादा होगा, and we have many more aspirants with us. Thank you.